difficult for us. Now, on behalf of ISC KNPG, I welcome you all. First of all, I invite our principal, Dr. P.N. Dongre sir, to welcome our speaker and also for his blessings. So, principal sir, please. Okay, thank you, madam. Welcome, Dr. Niveda Dwivedi ji. Myself, Dr. Pradeep Narayan Dongre. I am the principal of Ken Government PG College, and I welcome you in this program. Can everybody hear me? Yes, sir. Priyanka ji? Yes, 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 sir. sir. Yes, sir. आवाज हाँ, आ रही है आपकी. Dr. Nivedita ji, this is my profound privilege to welcome you in this very important meeting of our third quarter of IRC this year. And due to Corona and some other reasons, the activities were at a halt in the last few months. But now we have started with a good note that a very well very well knowledgeable and learned uh, speaker is our chief guest today. मैं अपने स्टूडेंट को बताना चाहता हूँ कि आज की हमारे जो गेस्ट हैं डॉक्टर निवेदा द्विवेदी, आप गांधीनगर गुजरात से हैं और आप स्टार्टअप और इनोवेशन के एक्सपर्ट हैं। आज वो हम लोगों को कुछ ऐसी जानकारी देंगी जिसपे हमें ये पता चलेगा कि कोई अगर प्रोडक्ट हम बनाते हैं तो उसको मार्केट तक पहुंचाने के लिए कैसे इनोवेशन के द्वारा कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसको मार्केट में कैसे पहुंचाया जाता है या मार्केटेबल उसको बनाने के लिए किस तरह से काम करना होता है। तो आई वेलकम यू डॉक्टर निवेदा वंस अगेन एंड आई थैंक यू डॉक्टर प्रियंका ji for inviting me to welcome our guest. And this is a great note that today more than 140 participants are with us, and this will be a great success uh, if the words of our chief guest are heard by the students and teachers, and if we are able to work on that in the next near future. Thank you, Dr. Priyanka ji, and Thank you, sir. I request you to continue the proceedings. Okay. Thank you, sir. Thank you very much for your heart welcome to our chief guest and your blessings. Now, I want to introduce our speaker. Our speaker is Dr. Nivedita Dwivedi. She is assistant professor in entrepreneurship and innovation, Swarnim Startup and Innovation University, Gandhinagar, Gujarat. Dr. Nivedita has completed her master degree in extension and communication management from Banaras Hindu University, Varanasi. Ma'am has earned her doctoral degree from Chandrasekhar Azad Agricultural University, Kanpur. Dr. Nivedita has been awarded by University Gold Medal in UG degree by Narendra Dev University, Agra. Dr. Dwivedi has published two books with Lambert Academy Dr. Publication. Priyanka ji, I am interrupting a bit. Hello. Yes, sir. Yes, sir. I would be requesting Dr. Nivedita ji to deliver her lecture in bilingual mode because most of the students of our college are from rural areas, and if she can do it in bilingual mode, then it will be Yes, better sir. for our students, मैं better भी अभी मैम understandable. को रिक्वेस्ट करूंगी सर, उनका एक Okay, thank you. इंट्रोडक्शन दे दूं बच्चों को, तो मैं जरूर मैम से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हम लोग को जरा बायलिंगुअल में दें. एक्चुअली मैम हैज पब्लिश्ड टू बुक्स with Lambert Academy publication. She has contributed many research papers in various national and international journals. Now, the topic of the Tuesday lecture of ma'am is building an innovative product fit for the market. मुझे लगता है कि मैम का ये लेक्चर हमारे विद्यार्थियों के लिए बहुत ही फ्रूटफुल होने वाला है, और मैं मैम से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो अपना लेक्चर स्टार्ट करें. और एक चीज़ और, मैम आप सुन पा रही हैं हम लोग को, तो
प्लीज आप हमारे चूंकि विद्यार्थी वो थोड़ा सा बैकवर्ड एरिया से हैं, तो उनको हिंदी और इंग्लिश मिक्स लैंग्वेज में अगर आप बताएंगी तो उनके ज़्यादा समझ में आएगा, इसलिए प्लीज। हेलो निवेदिता मैम। Audible. यस। हाँ। हेलो हेलो मैम। Yes, ma'am, you are audible. हेलो। यस मैम, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज स्टार्ट योर लेक्चर। Ma'am, it's a great honor and pleasure for me that. Your voice is not Yeah. coming properly. Am I audible? Yes, ma'am. Your voice is not coming properly. Am I audible? Yeah, yeah. Yes ma'am, Okay. you are audible. So it's a great pleasure and honor for me as I am invited in KNPG College as expert for IIC session. It is already discussed with Rashmi ma'am regarding the language that the students will prefer Hindi and English combined language. So I will try my best. And basically, I am also from UP, Uttar Pradesh. I know. So I will try to जस्ट अ मिनट मैम, जस्ट अ मिनट प्लीज। स्टूडेंट्स आप अपने माइक ऑफ रखेंगे, अदरवाइज हम आपको रिमूव कर देंगे। एक बार बात बताने में समझ नहीं आती आप लोग को। स्टूडेंट्स ऑफ योर माइक। स्टूडेंट्स के माइक ऑफ है मैम। एक्चुअली में प्रॉब्लम ये है कि कुछ लोग दो डिवाइसेस के साथ में लॉगिन किए हुए हैं, इस वजह से आवाज इको कर रही है। आप में से जो भी दो डिवाइसेस के साथ लॉगिन है, एक डिवाइस कर लीजिए तो ये इको नहीं होगा आवाज। क्योंकि मैम स्पीकर मैम की ही आवाज क्लियर नहीं हो पा रही है इस इंटरप्रेशन, इस वजह से। निवेदिता मैम आप ट्राई करिए, आप बोलिए। तो मैं ये बोल रही थी कि रश्मि मैम से डिस्कस हो चुका है कि इंग्लिश एंड हिंदी कंबाइंड लैंग्वेज। सो मैं ट्राई करूंगी कि मैं अपना मोस्ट ऑफ द जो कंटेंट है वो हिंदी में ही डिलीवर करूं एंड someone Anurag Yadav, kindly mute yourself. So now मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। So as principal sir already told about the topic, my screen is visible. Priyanka ma'am, screen visible है? Yes, ma'am. Okay. तो आज का हमारा टॉपिक है बिल्डिंग एंड इनोवेशन प्रोडक्ट फिट फॉर मार्केट। दिस इज द टॉपिक, ये आज के सेशन का टॉपिक है। किसी भी एंटरप्रेन्योर उद्यमी के लिए या स्टार्टअप के लिए जो सबसे मेन प्रॉब्लम होता है वो ये कि जो भी प्रोडक्ट उसने बनाया है वो मार्केट के लिए फिट है कि नहीं, मार्केट में एक्सेप्टेबल है कि नहीं। एंटरप्रेन्योर्स जिनको हम हिंदी में उद्यमी कहते हैं, तो जो कोई अलग अलग रिसोर्सेज, अलग जैसे कि ह्यूमन रिसोर्स हुआ, कुछ भी प्रोडक्ट बनाने के लिए जो सामान चाहिए उनको एक साथ लाता है और एक प्रोसेस के थ्रू उस प्रोडक्ट को, उस सामान को बनाता है। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप और उस पर्सन को बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। ठीक है। और जहां पर ये प्रोडक्ट या सर्विस क्रिएट होता है उसको हम बोलते हैं एंटरप्राइज। नाउ आजकल एक मतलब नया कॉन्सेप्ट है स्टार्टअप्स का। तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने इसके और भी सेशंस हुए होंगे तो जहां पे आपको स्टार्टअप्स के बारे में बताया गया होगा कि ये स्टार्टअप्स कौन होते हैं। तो मैं एक ब्रीफ उनका आपको बताऊंगी आगे कंटिन्यू करने के पहले। तो स्टार्टअप्स बेसिकली वो होते हैं जिनका कोई पहले से एंटरप्रेन्योरियल बैकग्राउंड नहीं होता, जिनका पहले से मतलब कुछ उद्यमिता का जैसे फैमिली बैकग्राउंड नहीं होता, वो इससे रिलेटेड नहीं होते हैं। उनके पास एक कोई आइडिया होता है जो कि जो मार्केट में या जो सोसाइटी में किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। ठीक है।
हेलो, कि कोई और स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा है जिसकी वजह से मेरा प्रेजेंटेशन स्टॉप हो गया है? समवन, रमेश यादव। माय स्क्रीन इज विजिबल। रश्मि मैम, मेरा स्क्रीन विजिबल है? विजिबल है मैम आपकी स्क्रीन। ओके, विजिबल है। हाँ मैम अभी। क्योंकि मेरे में आ रहा है, मेरे स्क्रीन पे आ रहा है कि यू आर नो लॉन्गर प्रेजेंटिंग द स्क्रीन बिकॉज समवन अनदर इज प्रेजेंटिंग द स्क्रीन। तो मेरा स्क्रीन विजिबल है, प्रियंका मैम एंड रश्मि मैम? प्रियंका मैम आप देख पा रही हैं स्क्रीन को? नो मैम, स्क्रीन मैं फिर विजिबल नहीं है मैम स्क्रीन। मैम आप फिर से शेयर कर दीजिए एक बार। जी जी, अभी विजिबल है मैम? हाँ मैम अब विजिबल है। हाँ, विजिबल है। तो स्टार्टअप्स के पास आइडिया होता है, उनका एंटरप्रेन्योरशिप का, उद्यमिता का कोई बैकग्राउंड नहीं होता है, और जो वो आइडिया होता है वो सोसाइटी के किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। मतलब जैसे मेरे ख्याल से आप लोग ओला, उबर, स्विगी, जोमेटो या अर्बन कंपनी, इस तरह के स्टार्टअप से अवेयर होंगे, इनको जानते होंगे। तो ये आइडियाज जनरेट हुए और इन पे वर्क किया गया, उसके बाद ये एक अभी ये नाउ दे आर एंटरप्रेन्योर। जो भी स्टार्टअप के लिए क्राइटेरिया बनाया गया है, इंडियन गवर्नमेंट ने बनाया है, उसको ये क्रॉस कर चुके हैं। नाउ दे आर एंटरप्रेन्योर्स, दे आर यूनिकॉर्न्स। वो अलग अलग सबका एक डेफिनेशन है, उसके कैटेगरीज में वो आते हैं। तो ये तो एक स्टार्टअप या एक एंटरप्रेन्योर की मेजर प्रॉब्लम होती है कि जो भी प्रोडक्ट या सर्विस वो बना रहे हैं वो मार्केट में उसकी डिमांड है कि नहीं। मतलब वो मार्केट में लॉन्च होगा, मार्केट में आएगा, तो उसको लोग खरीदेंगे कि नहीं, या फिर उस सर्विस को यूज करेंगे कि नहीं। तो दिस इज द मेजर प्रॉब्लम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इनोवेशन क्या होता है। व्हाट इज इनोवेशन? तो इनोवेशन एक कोई आइडिया है जो कि किसी भी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में, जो प्रोडक्ट है उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट है, उसमें कुछ वैल्यू ऐड कर रहा है कि उसको यूज करने वाले की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए, या उसको वो और आसानी से यूज कर सके। ठीक है? और या फिर एक कोई नया प्रोडक्ट बनाना। तो इसका एग्जांपल है जैसे ओला। ओला का कॉन्सेप्ट क्या है कि आप जहां पर भी हैं, जिस भी जगह पे, चाहे आप वो ऑफिस में हो, चाहे घर पे हो, चाहे कॉलेज में हो, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपके पास कोई कैब आ जाए, कोई टैक्सी आ जाए, कोई ऑटो आ जाए, तो और आप कहाँ जाना है वो आपको उसमें बताना है, आपको कितना पे करना है, आप कितने समय में पहुंचेंगे, किस रास्ते से पहुंचेंगे, ये सारे फीचर्स आपको ओला में पता चल जाते हैं, आप उसको देख के जान सकते हैं। तो ये आइडिया आया कहाँ से, ये आइडिया जनरेट कैसे हुआ? तो पहले क्या होता था कि ओला नहीं था, तो हमको कहीं जाना है, दूर जाना है, या किसी के पास कार या कोई भी ऐसी व्हीकल नहीं है, तो वो ट्रैवल एजेंट से कांटेक्ट करते थे, ट्रैवल एजेंसी से कांटेक्ट करते थे, या फिर अगर किसी पर्सनली किसी कैब ड्राइवर को, टैक्सी ड्राइवर को जानते हैं तो उनसे कांटेक्ट करते थे और अपनी रिक्वायरमेंट बताते थे। वो जो भी पेमेंट बताते थे वो देना है, जो चार्ज वो बताते थे वो देना है। कई बार जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग जो टैक्सी है या कोई भी व्हीकल है वो नहीं मिलती थी, तो कस्टमर को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता था। जो भी अवेलेबल है, जो भी व्हीकल अवेलेबल है, उसी के अकॉर्डिंग उसमें उसको एडजस्ट करना पड़ता था, या फिर अपना प्रोग्राम डिले करना पड़ता था। एक तो ये प्रॉब्लम थी। दूसरी प्रॉब्लम क्या थी कि मान लीजिए आपने कहा कि मुझको 440 पे ये टैक्सी, ये कैब चाहिए, या मेरे घर पे या मेरे ऑफिस में,
तो आपने 4:15 पे या 4 बजे उसको कॉल किया ड्राइवर को या जो ट्रैवल एजेंट है उनको, तो वो बोलेंगे हाँ वो पहुंच रहा है 4:30 तक नहीं आया तो अभी 10 कहीं भी आना जाना है तो कैसे आए, कैसे जाए, क्या करें। ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की गई, इस पे वर्क किया गया और फिर इसको लॉन्च किया गया। तो ये था कि एक नया प्रोडक्ट जो मार्केट में इंट्रोड्यूस हुआ, जो एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, जो कैब बुकिंग या टैक्सी का है। तो अभी जो लोग ओला यूज करते होंगे, पहले इसमें सिर्फ वो जानते होंगे कि पहले इसमें सिर्फ 4 व्हीलर्स अवेलेबल थे, जो कार होती है वो अवेलेबल थी, उसमें भी कई तरह की कैटेगरीज होती थी, उसी हिसाब से पेमेंट करना होता था। जैसे प्राइम है, प्राइम सेडॉन है या रेगुलर है, इस तरह की कई सारी, मिनी है, तो उसी के हिसाब से जैसे आप मिनी बुक करेंगे तो आपके पास छोटी कार आएगी, जैसे 1 या 2 लोगों को जाना है। प्राइम करेंगे तो कोई सेडॉन वाली कार आएगी, उसके चार्जेस भी अलग होते थे। तो कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट को देखते हुए अभी ओला में ऑटो भी अवेलेबल है कि आपको कम दूर जाना है, 4 व्हीलर के लिए आप ज्यादा पे करेंगे और ऑटो से आप वहीं के लिए 30, 40, 50 रुपीज आपको देने होंगे। एक्सक्यूज मी। तो आपको उसी के लिए ज्यादा पे करना है, और ऑटो से जाएंगे तो आप 50 रुपीज तक में जा सकते हैं, 4 व्हीलर से जाएंगे तो 100, 150 तक करना है। इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया गया और उसमें एक नया सेगमेंट ऐड किया गया ऑटो का। फिर अभी उसमें बाइक्स भी अवेलेबल हैं। नाउ अभी न्यूज में आ रहा है कि ई बाइक्स भी उसमें अवेलेबल हैं, मतलब अभी वो लॉन्च नहीं हुई है बट वो आएंगी, तो उसकी पहले से प्री बुकिंग हो रही है। उसमें आपको कौन सा कलर प्रेफर करना है ये भी ऑप्शंस आ रहे हैं। तो ये क्या है कि ओला जो एक एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसमें कुछ नया ऐड किया गया, तो ये भी इनोवेशन है। तो इनोवेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि कोई भी नया प्रोडक्ट बनाना, किसी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में जो प्रोडक्ट है ऑलरेडी जिसको यूज किया जा रहा है उसमें कुछ नया ऐड करना भी। तो उसमें ओला में एक फूड पांडा भी ऑप्शन है कि आप जहां पर हैं, आपने बुक किया, जो भी फूड आपने बुक किया वो आपकी प्लेस पर, आप जहां कैब में बैठे हुए हैं, जिस भी टैक्सी में बैठे हुए हैं, आपके पास आ जाएगा आपका फूड। तो दिस इज इनोवेशन, ये इनोवेशन है। ठीक है, आई थिंक प्रीवियस सेशंस में इसमें भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, किस किस तरह के इनोवेशन होते हैं, वो चीजें डिस्कस की गई होंगी। नाउ द सेकेंड थिंग इज प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट क्या होता है, तो हम यहाँ प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट का मतलब सिर्फ ये नहीं कि कोई भी फिजिकल कुछ भी ऐसा सामान जिसको हम परचेज करके अपने घर में या अपने साथ ला सकें। ठीक है, यहाँ पर जो प्रोडक्ट तो यूज किया गया है वो कोई सर्विस, जैसे ओला यूज करते हैं, तो ओला जो भी टैक्सी यूज की जाती है वो आपकी नहीं होती, मतलब वो कस्टमर की नहीं होती है, वो उस पर्टिकुलर टाइम के लिए उसको यूज करता है, अपने जहां जाना है डेस्टिनेशन पर जाता है, उसके लिए पेमेंट करता है, बस, वो उसका ओनर नहीं है। तो दिस इज सर्विस, ये सर्विस है। ठीक है, और मान लीजिए आप अमूल का एक पैकेट दूध लाते हैं, या आप कोई मोबाइल खरीदते हैं, आप एक लैपटॉप खरीदते हैं, तो वो क्या है, प्रोडक्ट है। आपने उसके लिए पेमेंट किया, पैसे दिए और वो सामान आपका हो गया। तो यहाँ पे क्या है कि एक्सचेंज हो रहा है, मतलब ओनरशिप, किसका सामान है वो चेंज हो गया। कस्टमर ने सेलर को, जो खरीदने वाला है, उसने बेचने वाले को पैसा दिया और सामान उसका हो गया, वो पैसा बेचने वाले का हो गया। तो जब प्रोडक्ट की बात हम एंटरप्रेन्योरशिप में या स्टार्टअप में करते हैं तो वहां पे सर्विस इंडस्ट्री भी आती है और प्रोडक्ट इंडस्ट्री, कोई प्रोडक्ट इंडस्ट्री भी आता है। तो ये दोनों का पर्पस क्या है, सेल करना, सर्विस सेल करना या फिर प्रोडक्ट। तो दिस इज प्रोडक्ट। ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट
हम आगे के डिस्कशन में जो भी ये प्रोडक्ट वर्ड यूज करेंगे तो वो प्रोडक्ट और सर्विस दोनों के लिए होगा, तो आप उसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। तो प्रोडक्ट जो है उसका कुछ भी कोई कॉस्ट होता है, उसको बनाने में कुछ पैसे लगते हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट होता है। जो भी एंटरप्रेन्योर या स्टार्टअप उस प्रोडक्ट को बना रहा है उसने उसमें कुछ खर्च किया है, कुछ पैसे लगाए हुए हैं, और उसको वो बेचने के लिए, सेल करने के लिए वो उसको उसने बनाया है। और सेलिंग में भी कुछ उसका प्राइस होगा, जो भी प्राइस होगा उसमें वो अपना प्रॉफिट भी ऐड करेगा। बनाने वाले से और बेचने वाले के बीच में जो लोग भी इन्वॉल्व होंगे उनका भी उसमें कुछ शेयर होगा। ठीक है, कई बार हम पैक्ड कुछ भी पैकेट वाला कोई सामान खरीदते हैं तो आप देखते होंगे कि जो उस पे प्रिंटेड प्राइस है उससे 1, 2, 5, 10 रुपए जो शॉपकीपर है, दुकानदार है, वो कम लेता है। आप थोड़ी बड़ी दुकान में जाएंगे तो वो और कम और ज्यादा पैसे छोड़ देगा। तो प्रोडक्ट बनाने वाले का कुछ उसमें इन्वेस्टमेंट है, प्लस प्रोडक्ट बेचने उसको बेचने में भी उसको प्रॉफिट लेना है, तभी वो उसका बिजनेस रन कर पाएगा, उसका जो उद्यम है, जो एंटरप्राइज है, वो चल पाएगा। और हर प्रोडक्ट का मतलब हर जो प्रोडक्ट है, चाहे वो सर्विस है चाहे प्रोडक्ट है, उसका एक लाइफ है, एक लाइफ साइकिल होती है। जैसे एक ह्यूमन बींग्स की, जैसे हम लोगों की एक लाइफ साइकिल होती है, हमारा जन्म होता है, हम बड़े होते हैं, बूढ़े होते हैं, डेथ हो जाती है। उसी तरह प्रोडक्ट का भी एक लाइफ साइकिल होता है। ठीक है, तो और जो प्रोडक्ट है या तो उसको रिप्लेस किया, मतलब उसकी जगह कुछ दूसरा प्रोडक्ट आता है, या फिर जो प्रोडक्ट है उसमें कुछ इनोवेशन किया जाता है कि वो आगे कंटिन्यू कर सके। अगर इनोवेशन नहीं होगा, मतलब उसमें कुछ नया ऐड नहीं होगा, तो क्या होगा, कोई कॉम्पिटिटर आएगा जो कि नए आइडिया के साथ आएगा, उस प्रोडक्ट में कुछ चेंजेस के साथ आएगा दूसरे नाम से, तो जो कस्टमर्स हैं वो उसके प्रोडक्ट को खरीदेंगे, और जो चेंज नहीं कर रहा है, जो उसमें इनोवेशन नहीं कर रहा है या रिप्लेस नहीं कर रहा है, उसके प्रोडक्ट को खरीदना बंद कर देंगे। सो दिस इज ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होता है, इसमें डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। तो ये ग्राफ है जिसमें किसी भी प्रोडक्ट के, चाहे वो सर्विस इंडस्ट्री हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग, चाहे प्रोडक्ट बनाने वाला हो, चाहे सर्विस देने वाला हो, सबकी ये लाइफ साइकिल होती है, और इसी तरह उसका ग्रोथ होता है। तो जैसे फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन, इसका मतलब मार्केट में जब कोई प्रोडक्ट आ रहा है, इंट्रोड्यूस हो रहा है, जस्ट लाइक जैसे एनिमल्स में, ह्यूमन बींग्स में बर्थ होता है, फिर धीरे धीरे ग्रोथ होता है, मैच्योर होते हैं। जिन प्रोडक्ट्स में इनोवेशन होता है उसमें ये आ जाता है प्रोडक्ट एक्सटेंशन, मतलब वो मार्केट में एग्जिस्ट करेंगे, उनकी लाइफ बढ़ जाती है। जो प्रोडक्ट्स में, जिन प्रोडक्ट्स में इनोवेशन नहीं होता है, वो प्रोडक्ट्स डिक्लाइन करते हैं, मतलब उनको मार्केट से बाहर जाना पड़ता है। कुछ प्रोडक्ट्स में ये डिक्लाइन कंपलसरी है, जैसे कि आई थिंक टेस्ला मोटर्स का नाम आप सबने सुना होगा। ओके, तो टेस्ला मोटर्स इलेक्ट्रिक इंजन कार्स बनाती है, ठीक है, और वो रिप्लेस कर रही है डीजल इंजन को। क्यों? क्योंकि जो डीजल इंजन है वो, जो डीजल है वो, जो फ्यूल है वो कुछ टाइम के बाद खत्म हो जाएगा, जिसको और फिर एक प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसके लिए इनोवेशन किया जा रहा है, पहले से रिसर्च किया जा रहा है कि जो डीजल है अगर वो एग्जॉस्ट हो जाता है, अगर वो खत्म हो जाता है, तो उसका ऑप्शन और क्या हो सकता है। तो अभी सुनने, मतलब ऐसा रिसर्च चल रहा है, ऐसा पढ़ने में आ रहा है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक, पानी से चलने वाले भी कुछ व्हीकल्स के बारे में सोचा जा रहा है, उस पर रिसर्च हो रहा है, एक आध इन्वेंट हुआ है, बट उसमें प्रॉब्लम यही होती है कि जो वाटर स्टोरेज है वो उसमें हैवी कर देता है उसको। फिर इलेक्ट्रिक इंजन्स का, जैसे मैंने बताया टेस्ला मोटर्स, कहीं कहीं पर वो लॉन्च भी हुआ है, कहीं कहीं पे उसके बारे में टेस्टिंग भी हो रही है। तो उसके लिए ये कंडीशन है कि मतलब उसके चार्जिंग के लिए, जैसे ये पेट्रोल पंप्स और ये सब होते हैं, वैसा ही कुछ स्टेशन बना होना चाहिए कि अगर बीच में किसी का डिस्चार्ज हो जाए, चार्ज करना हो, तो वहां पे जाके चार्ज करे। तो इस केस में डिक्लाइन किया जा रहा है प्रोडक्ट को, ठीक है, डीजल इंजन कार्स को
डिक्लाइन किया जा रहा है कि लोग अपने जो पर्सनल यूज के लिए डीजल इंजन कार्स को यूज करते हैं उसको ना यूज करें और उसकी जगह ये यूज करें। फिर सोलर एनर्जी से भी चलने वाले व्हीकल्स बन रहे हैं इसी के लिए, ठीक है। तो इस प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को कंटिन्यू करने के लिए प्रोडक्ट एक्सटेंशन कंपलसरी है। तो जैसे मैंने ओला में बताया कि जब ओला इंट्रोड्यूस हुआ था तो उसमें सिर्फ फोर व्हीलर्स थे, 2-3 सेगमेंट थे। अभी उसमें कई सारे सेगमेंट हैं, आप आउट ऑफ द स्टेट भी जा सकते हैं। फिर 2 व्हीलर्स अवेलेबल हैं, ऑटो अवेलेबल है, अभी इलेक्ट्रिक बाइक्स भी आ रही हैं उसमें, ठीक है। तो उन्होंने फिर उसमें ऐड कर दिया, कलर चॉइसेस ऐड कर दिया। तो ये सब क्या है, कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए और कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए ये इनोवेशंस किए जा रहे हैं जो भी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं उसमें। नाउ अब ये है प्रोडक्ट मार्केट फिट। तो हमने देखा इनोवेशन क्या है, प्रोडक्ट क्या है, सर्विस क्या है, क्यों इनोवेशन क्यों कंपलसरी है, प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल क्या होती है, ठीक है। अब जो प्रोडक्ट मार्केट फिट का मतलब है जो भी प्रोडक्ट या सर्विस एंटरप्रेन्योर या स्टार्टअप बना रहा है वो मार्केट में फिट होना चाहिए। मींस उसके खरीदने वाले होने चाहिए, उसके कंज्यूमर्स होने चाहिए, ठीक है। तो जैसा फर्स्ट पॉइंट में लिखा है, अ प्रोडक्ट दैट कैन सेटिस्फाई द मार्केट डिमांड। डिमांड कौन क्रिएट करता है, जो कस्टमर्स होते हैं वो डिमांड क्रिएट करते हैं। तो प्रोडक्ट, जिस प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड होगी वही प्रोडक्ट मार्केट में फिट होगा। जैसे मैंने आपको ओला का एग्जांपल जो दिया, ओला ने किसको रिप्लेस कर दिया, ट्रैवल एजेंसी को रिप्लेस कर दिया, ठीक है। कि पहले ट्रैवल एजेंसी ही एक ऑप्शन था, हमको कहीं जाना है तो ट्रैवल एजेंसी से पहले से कांटेक्ट करना है और फिर अपनी रिक्वायरमेंट बतानी है, उनके पास जो भी अवेलेबल है, जो भी व्हीकल अवेलेबल है उससे चूज करना है, उसमें से मतलब बताना है कि किससे जाना है और उसके बाद उसी तरह का जो व्हीकल अवेलेबल होगी उसको हमको यूज करना है, ठीक है। तो क्या है, ओला आया तो ओला मार्केट में क्यों फिट हो गया, क्योंकि उसकी डिमांड है, कंज्यूमर्स को, कस्टमर्स को वो चाहिए कि उनके घर बैठे, उनके ऑफिस में, उनके कॉलेज में, मार्केट में जहां भी है वो उनके रिक्वायरमेंट की कार, ऑटो, बाइक आ जाए और वो उसके लिए पे कर सके। इसमें क्या होता है कि अगर हमको इस तरह की चीजों में 10 रुपए एक्स्ट्रा भी पे करने हैं तो कस्टमर्स आर रेडी। क्यों, क्योंकि उनको जो भी सर्विस चाहिए टाइम पर चाहिए, टाइम इज वैल्यूएबल, ठीक है। अब वो 10 रुपए एक्स्ट्रा दो और टाइम पर आ जाए तो दैट इज गुड, ना कि वो 10 रुपए से ज्यादा के हम फोन कर लेंगे ड्राइवर को और ट्रैवल एजेंसी को, ठीक है। तो वो प्रोडक्ट जो मार्केट में कस्टमर्स की नीड को, डिमांड को सेटिस्फाई करता है उसको कहते हैं प्रोडक्ट मार्केट फिट, ठीक है। और ऐसा देन हम नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करेंगे कि जो प्रोडक्ट है उसके पास, मतलब उसमें इतनी वैल्यू होनी चाहिए, वो इतना उसकी डिमांड होनी चाहिए कि वो एक ग्रुप को सेटिस्फाई करे, 2-4 कस्टमर्स को नहीं सेटिस्फाई करे। तो जो स्टार्टअप्स हैं या जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको ऐसा प्रोडक्ट बनाना चाहिए जो एक लार्ज ग्रुप की नीड को सेटिस्फाई करे। तो आगे के स्टेप्स में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह ये पता किया जा सकता है कि एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जाना जाए, ऐसे प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई किया जाए कि लार्ज ग्रुप ऑफ कस्टमर्स को, ज्यादा से ज्यादा जो खरीदार हैं उनकी नीड को वो आइडेंटिफाई कर सके। ओके, देन जिस कस्टमर को जरूरत हो वैसा ही प्रोडक्ट बनाना चाहिए स्टार्टअप को, ऐसा नहीं बनाना चाहिए जो उनको पसंद हो। कस्टमर्स की नीड को आइडेंटिफाई करना चाहिए और तब प्रोडक्ट को बनाना चाहिए, ठीक है। अब जो ये प्रोडक्ट मार्केट फिट है इसके 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज द प्रोडक्ट, जो भी सामान है, प्रोडक्ट है वो सर्विस हो। दूसरा है मार्केट, जो प्रोडक्ट बनाना है, जो सर्विस बनाना है उसको स्टार्टअप या एंटरप्रेन्योर कंट्रोल कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि वो सर्विस या प्रोडक्ट उन्हीं को बनाना है, कैसे बनाना है, कहाँ बनाना है, कब बनाना है,
दे कैन कंट्रोल इट, वो उनके कंट्रोल में है। बट जो ये मार्केट है ये स्टार्टअप या एंटरप्रेन्योर्स के कंट्रोल में नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ तो जो कस्टमर की डिमांड है वही बनाना है, ठीक है। ट्रैवल एजेंट्स है, ट्रैवल एजेंसी है, या फिर जो ये ड्राइवर्स हैं, कैब ड्राइवर्स हैं, तो वो क्या है, पहले ओला नहीं था तो कस्टमर्स को उन्हीं से लेना है, वो मजबूरी है भाई, लेना है। अभी क्या है, ट्रैवल एजेंसी भी है, ओला भी है, ठीक है। तो डिमांड है टैक्सी की, कैब की डिमांड है, तो कस्टमर के पास ऑप्शन है कि वो ट्रैवल एजेंसी से कांटेक्ट करे या ओला से कांटेक्ट करे, किसकी सर्विस बेटर है तो वो उसी से कांटेक्ट करेगा, वो उसी को पे करेगा। तो जो मार्केट है वो कंट्रोल नहीं किया जा सकता, क्योंकि अभी जैसे ये जो कोरोना का टाइम है, कोविड जो चल रहा है, जो ये महामारी चल रही है, अगर हम मतलब सोचें कि इसके पहले हमारी लाइफस्टाइल कैसे थी और जब से ये कोरोना आया है हमारी लाइफस्टाइल क्या है। कोई ऑनलाइन क्लासेस के बारे में नहीं सोचता था। ये जो अभी हम ये सेशन कर रहे हैं ये भी ऑनलाइन नहीं होता, ठीक है, ये भी ऑनलाइन नहीं होता। अगर ये कोरोना नहीं होता तो हम क्लासरूम में, हम सेमिनार हॉल में बैठ के ये सेशन कर रहे होते, बट कोरोना आ गया, ये महामारी आ गई, तो सबको सुरक्षित रहना है, सबको बच के रहना है, इसके लिए ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऐसा नहीं था ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पहले नहीं थे, ये पहले से थे, बट इनका यूज नहीं होता था। कौन सोचता कि ये जो सेशन हो रहा है ये ऑनलाइन करेंगे, हम ही लोग सोचते कि नहीं, जो फेस टू फेस में जितना इंटरेक्शन होगा, जितना एक्सपोजर होगा, ये ऑनलाइन सेशन में नहीं होगा। या जो हमारे यहाँ जो क्लासेस ऑनलाइन होने लगी, तो हमको ही लगता कि नहीं, जो फिजिकल क्लासेस में जो लर्निंग होती है, जो सीखने को मिलता है, वो ऑनलाइन में नहीं मिलता है। बट सिचुएशन ऐसी है, क्या करें, हमको ऑनलाइन क्लासेस करनी है, ठीक है। तो ये जो डिमांड है ये कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, ये हम और आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो डिमांड क्या है मार्केट में कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चाहिए। अब क्या होगा, जो मीटिंग्स वगैरह है वो ऑनलाइन हो रही है, तो आप लोग सोचते हैं कि ये आने जाने का खर्चा और ये सब बचेगा, तो फिर ऑनलाइन मीटिंग ही कर लेते हैं। तो एक सिचुएशन आई जिसकी वजह से मार्केट में डिमांड क्रिएट हुई, जो प्रोडक्ट या तो एग्जिस्टिंग था या फिर नया प्रोडक्ट क्रिएट हुआ और उसकी डिमांड बढ़ी, ठीक है। तो प्रोडक्ट तो पहले से था अवेलेबल, लेकिन इसकी डिमांड नहीं थी मार्केट में, बट इस महामारी के सिचुएशन में इसकी डिमांड बढ़ गई। अभी जैसे कई सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, गूगल मीट है, इस तरह के कई प्लेटफॉर्म्स हैं। इन्होंने अपने, जैसे मैंने आपको ओला का एग्जांपल दिया, इन्होंने अपने बहुत सारे फीचर्स को इम्प्रूव किया है। जैसे ये गूगल मीट में ही पहले स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन था, ऑप्शंस आ गए हैं इसमें। पहले ऐसे लिंक में 100 पार्टिसिपेंट्स मैक्सिमम आ सकते थे, बट वो अभी नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इंक्रीज हो चुका है। तो ये क्या है, इनोवेशन है, जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसमें इनोवेशन किया गया है, तभी वो मार्केट में है। नहीं तो इनकेस अगर ये गूगल मीट पर ये कैपेसिटी नहीं बढ़ाई गई होती नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स की, तो आज हम ये गूगल मीट नहीं यूज कर रहे होते, हम इसका कोई ऑल्टरनेटिव, कोई दूसरा ऑप्शन सोच रहे होते। जूम प्लेटफॉर्म है, जो जूम में भी बहुत सारे फीचर्स ऐड किए इस महामारी वाले सिचुएशन में, ठीक है। तो क्या है, वो जो प्रोडक्ट है उसको मार्केट के अकॉर्डिंग इनोवेट किया गया, उसको चेंज किया गया, ठीक है। तो दिस इज कि जो स्टार्टअप है या जो एंटरप्रेन्योर है, प्रोडक्ट तो उसके कंट्रोल में है ही है, वो जैसा बनाना चाहे बनाएगा, बट उसको मार्केट को कंट्रोल में करना है। अभी क्या है, कैपेसिटी बढ़ गई, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स बढ़ गए, तो मार्केट में डिमांड है। फिर एक ये ऑप्शन आता है कि जूम जो है वो चाइनीज ऐप है, हमको चाइनीज ऐप नहीं यूज करना है, तो हम गूगल मीट यूज करेंगे। तो मार्केट के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट में इनोवेशन हुआ, चेंजेस हुआ, और फिर वो प्रोडक्ट मार्केट में फिट हो गया। तो जो भी स्टार्टअप या एंटरप्रेन्योर है उसको मार्केट की डिमांड के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट में चेंजेस करने हैं, इनोवेशन करने हैं, या नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है। अब कैसे जो प्रोडक्ट है उसको मार्केट में फिट करें, मतलब मार्केट के हिसाब से प्रोडक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करें।
तो उसमें पहला स्टेप होता है कि पहले तो आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करें, मार्केट में क्या प्रॉब्लम है, जो कस्टमर्स हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, वो क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला स्टेप होता है कि प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि सेल योर प्रॉब्लम, डोंट सेल योर प्रोडक्ट। जो समस्या है उसको बताइए, प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताइए। जैसे आप लोगों को उनकी समस्या बताएंगे कि आपको ये समस्या, अगर हम जैसे ओला, आई थिंक आप स्विगी या जोमेटो से जानते होंगे उसके बारे में। जैसे ओला है, आप जहाँ पे हैं आपको उस तरह की टैक्सी आपकी जगह पे मिल जाएगी, ऑटो या टू व्हीलर मिल जाएगा। उसी तरह जो स्विगी या जोमेटो है वो आपकी जगह पर आपके मनपसंद का खाना और आप जिस रेस्टोरेंट से चाहते हैं वहां पे आपके पास आ जाएगा। तो ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की गई होगी कि कोई कॉलेज में है, ऑफिस में है, या मान लीजिए घर पे है, खाना नहीं बना सकता, ऑफिस में है, लंच नहीं लाया है, लंच के लिए बाहर नहीं जा सकता, आसपास कुछ ऐसा नहीं है, आने जाने में जो टाइम लगेगा उतने में वो लंच करके वापस कॉलेज में नहीं आ सकता है। तो ये एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की गई। फिर सेकेंड स्टेप आता है जनरेट आइडिया फॉर द आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम। जो भी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की गई है उसका एक सोल्यूशन दीजिए, उसके लिए आइडिया बनाइए। तो इसीलिए कहा जाता है डोंट सेल योर प्रोडक्ट। अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में मत बताइए। जो भी प्रॉब्लम वो प्रोडक्ट या सर्विस सॉल्व कर रहा है, जिस भी समस्या का वो समाधान है, वो समस्या बताइए अपने कस्टमर्स को, अपने मार्केट में। तो जैसे अर्बन कंपनी, जो पहले अर्बन क्लैप था, उसमें क्या है कि आपको प्लम्बर चाहिए, ये नल ठीक करने वाला, टैप वैप ठीक करने वाला, या कारपेंटर बढ़ई चाहिए, या फिर सलून भी अवेलेबल है। तो इस तरह की सर्विसेज क्या है, अभी आपको अगर एक कील ठोकनी हो, आप किसी कारपेंटर, किसी बढ़ई के पास जाइए, आपकी जान पहचान का भी होगा, तो वो तो तुरंत आके तो करेगा नहीं, 1-2 दिन तो लगा ही देगा। ठीक है, मे भी 1 हफ्ता लगा दे। तो आप अर्बन कंपनी, पहले वो अर्बन क्लैप था, अब उसका जो इन्वेस्टमेंट और मतलब उसका जो उसमें पैसे लग रहे हैं और जो उसको रिटर्न मिल रहा है, जो उसको वापस मिल रहा है, वो बढ़ गया है। तो अब वो अर्बन कंपनी हो गई है। तो वहां पे आप बुक कर दीजिए, उनका रेट है कि आपको 1 कील लगानी है तो उसका ये चार्ज होगा, और 2 लगानी है तो उसका ये चार्ज होगा। आपने बुक किया अपने टाइम से, अपने डेट के खुद की चॉइस से, वो उस टाइम पर आएगा, आपका काम करेगा, आप चले जाइए। मान लीजिए किचन के टैप में कोई प्रॉब्लम आ गई, किचन के नल में, तो अब आप जिस प्लम्बर को जानते होंगे फोन करिए, वो पता नहीं समय से आएगा कि नहीं आएगा, 1 दिन बाद आएगा, 2 दिन बाद आएगा। अर्बन कंपनी से आप बुकिंग करिए, अपने टाइम पर, अपने डेट पर वो आएगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा और पेमेंट करिए, चला जाएगा। तो ये क्या है, ये प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई की गई सोसाइटी में और उन पर आइडिया जनरेट किया गया, उस पर वर्क किया गया, और आज वो एग्जिस्ट कर रही है, आज वो है मार्केट में। ठीक है, तो पहला है कि जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करिए, देन उस पे आइडिया जनरेट करिए, मतलब उस प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन दीजिए कि आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। फिर डिटरमाइन द टारगेट मार्केट। आपने जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की है और जिसका सोल्यूशन दिया है, तो पता करिए कि ये आपका आइडिया कहाँ चलेगा, किस मार्केट के लिए है ये। ठीक है, वहां पर आपको बताना है, वहां पर उस मार्केट में ये अपना आइडिया लोगों तक पहुंचाना है, तभी वो आपके प्रोडक्ट या सर्विस को यूज करेंगे। फिर आपको एक ये टर्म जो आ रहा है, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, जिसको हम शॉर्ट में MVP कहते हैं। तो अभी आपने मान लीजिए कोई प्रोडक्ट या सर्विस बनाया और उसको सीधे मार्केट में दे दिया, मतलब आपने प्रॉब्लम भी आइडेंटिफाई कर लिया, आइडिया भी जनरेट कर लिया, कहाँ पर उसको करना है वो भी पता कर लिया, और आप ये MVP ना बनाए, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट ना बनाए, और सीधे इन्वेस्टमेंट करके अपना पैसा लगा के जो भी प्रोडक्ट या सर्विस है उसको मार्केट में पहुंचा दे। तो ऐसा कई केसेस में क्या होता है कि जो प्रोडक्ट है या जो सर्विस है वो फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने प्रोडक्ट या सर्विस को मार्केट में टेस्ट नहीं किया है। तो ये मिनिमम वायबल प्रोडक्ट का मतलब है
कि एक अपने प्रोडक्ट या सर्विस का टेस्टिंग करना, उसको या तो छोटे स्केल पर बनाना या उसका कुछ मॉडल बनाना, फिर जो भी आपका टारगेट मार्केट है, जो कस्टमर्स है जिनके लिए वो प्रोडक्ट या सर्विस बनाया गया है, उनको उसके बारे में बताना, जानकारी देना, अगर पॉसिबल है तो वो उनको देना कि वो उसको यूज करें, अगर ये संभव है कि आप वो उनको उन तक पहुंचाएं और वो उसको यूज करें, वो उस पे अपना फीडबैक देते हैं, ठीक है। तो आपको MVP बनाना है। देन नेक्स्ट इज बिजनेस मॉडल। अब आपने जो प्रोडक्ट और सर्विस बनाया है वो आपके कस्टमर्स जो भी आपके हैं उन तक कैसे पहुंचेगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं बिजनेस मॉडल। जैसे कुछ प्रोडक्ट्स में क्या होता है कि जो प्रोडक्ट है, हम कई बड़े बड़े जो सिटीज है वहां पे शोरूम भी होता है, तो लिखा होता है फैक्ट्री आउटलेट, मतलब फैक्ट्री से बना और सीधे उस शॉप में या उस दुकान में या उस शोरूम में आ गया। तो उससे क्या होगा कि जो बीच के जो मतलब जो बीच में जो और लोग इन्वॉल्व होते हैं उनका जो कमीशन होता है वो उसमें नहीं होता है। तो फैक्ट्री में बना और वहां से जो रेट डिसाइड हुआ वो कंज्यूमर को पे करना है, तो वो कंपेरेट मतलब तुलनात्मक उसमें वो सस्ता पड़ता है, ठीक है। फिर कुछ होता है कि मतलब जो बनाने वाला है उससे फिर वो रिटेलर के पास आएगा, फिर होलसेलर के पास आएगा, फिर कंज्यूमर शॉपकीपर के पास आएगा, फिर कंज्यूमर के पास आएगा। तो इसमें इन सब लोगों का, ये भी चूंकि काम कर रहे हैं तो इन सबका कुछ ना कुछ इंटरेस्ट होगा, तो प्राइस कस्टमर तक आते आते बढ़ जाएगी। तो आपका जो प्रोडक्ट और सर्विस है वो कैसे कस्टमर तक पहुंचने वाला है, जो आपका टारगेट मार्केट है वो कैसे पहुंचने वाला है। तो इसमें कई मॉडल हैं, जैसे C2B कहते हैं हम, B2C कहते हैं, बिजनेस टू कंज्यूमर, देन कंज्यूमर टू बिजनेस, देन कंज्यूमर टू गवर्नमेंट। इस तरह के कई मॉडल्स होते हैं। तो वो मॉडल डिसाइड किया जाता है कि किस तरह से, बेसिकली ये यही है कि किस तरह से जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर्स तक पहुंचेगा, ठीक है। फिर मैंने जैसे ऊपर वाले पॉइंट में कहा कि एक मिनिमम वायबल एक मॉडल बनाना है, चाहे वो कुछ केसेस में जैसे कुछ सॉफ्टवेयर जो होता है, जो इंजीनियरिंग वाले होते हैं, वो वर्चुअल मॉडल उनको कहते हैं कि मतलब आप उसको कंप्यूटर पे टीवी पे देख सकते हैं, लेकिन वो सच में नहीं बनाएंगे, तो वो उसके थ्रू समझाते हैं, उसके माध्यम से समझाते हैं। फिर कुछ जैसे आप कोई सामान खरीदते हैं तो उसपे आपको मान लीजिए आपने कोई पाउडर खरीदा तो उसपे आपको एक शैम्पू का छोटा पैकेट मिल गया, तो क्या है वो जो छोटा पैकेट है वो MVP है, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट है। कस्टमर्स उसको यूज करेंगे, अगर वो उससे सेटिस्फाइड है तो फिर वो लॉन्च करने वाले हैं तो वो उसको यूज करेंगे, फिर या वो फीडबैक लेंगे किसी ना किसी फॉर्म में। तो ये क्या है, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, कि कस्टमर्स के से ये टेस्ट करना कि ये प्रोडक्ट चलेगा कि नहीं चलेगा, कस्टमर्स का फीडबैक लेना। अब ये जो टेस्टिंग ऑफ MVP होता है ये एक रिपीटेटिव, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम जो पहली बार जो MVP बनाया, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बनाया, वो कस्टमर्स एक्सेप्ट कर लेंगे। उनसे जब फीडबैक लिया जाएगा तो वो उसमें कुछ कमियां बताएंगे, कोई पूरा उसको रिजेक्ट कर देगा। तो जब तक MVP मिनिमम वायबल प्रोडक्ट में कस्टमर्स का पॉजिटिव फीडबैक नहीं आए, मतलब अच्छा फीडबैक नहीं आए, तब तक ये प्रोसेस चलता है। स्टार्टअप्स को या कस्टमर्स को करना पड़ता है, फीडबैक लेते हैं, मतलब उस प्रोडक्ट या सर्विस को यूज करने के बाद उनको कैसा लगा, उसमें क्या और वो चेंज चाहते हैं, कोई सर्विस है तो उसमें और क्या हो सकता है, कोई सामान है तो उसमें क्या कमियां हैं, उसमें और क्या अच्छा हो सकता है, ये कस्टमर्स बताते हैं। तो कई बार आप शोरूम वगैरह में जाते होंगे तो आपने देखा होगा कि वहां पे कुछ लोग आपसे एक क्वेश्चनर होता है, पूछते हैं किसी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में, फिर हो सकता है उसका एक छोटा सा सैंपल भी आपको दे देते हैं। या आप किसी दुकान में जाते हैं, जैसे मान लीजिए रिलायंस में अगर आप जाते हैं या किसी शोरूम में जाते हैं तो वहां पूछते हैं कि कैसा है ये, इनका कैसा है, ये आपका सर्विस कैसा था, जो दिखाने वाले लोग थे ये लोग कैसे थे, और दुकान आपको कैसी लगी। तो ये क्या है, वो फीडबैक ले रहे हैं। अब उनके सर्विस में क्या अच्छा है, क्या कमियां हैं, ये सब उनको पता चलेगी,
और इसके अकॉर्डिंग वो उसको इम्प्रूव कर देंगे। ठीक है, तो अगर MVP वैल्यूएबल है, मतलब MVP की वैल्यू है, कस्टमर्स का फीडबैक पॉजिटिव है, जो भी प्रोडक्ट या सर्विस बना है वो अच्छा है, उससे वो सेटिस्फाइड है, तो इसका मतलब आपका जो ये प्रोडक्ट मार्केट फिट है वो मिल गया आपको, आपका प्रोडक्ट मार्केट में फिट हो रहा है, लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, तो ये एक मेथड है, एक प्रोसेस है। तो ये सेशन ऑर्गेनाइज करने का पर्पस यही है कि पहले ही कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट में बना के सीधे नहीं लाना चाहिए कि ये प्रोडक्ट है मेरा, ये सर्विस, और इसको मार्केट में लॉन्च कर दो। तो ज्यादातर जो एंटरप्रेन्योर्स हैं या जो स्टार्टअप्स हैं वो यहाँ पर फेल हो जाते हैं। तो यही जो स्टेप है ये है कि आप पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करिए, उसका एक सोल्यूशन दीजिए, जो आपके टारगेट मार्केट आइडेंटिफाई करिए, उसका एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बनाइए, बिजनेस मॉडल सोचिए कि कैसे आपके कस्टमर्स तक पहुंचेगा, फिर अपना जो आपका मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बना है उसको टेस्ट करिए अपने कस्टमर्स के साथ, मतलब उनको यूज करने को दीजिए, उसके बारे में बताइए, और मे भी जो कस्टमर्स के फीडबैक है, जो अच्छे फीडबैक है वो तो अच्छा है, उसमें जो कमियां बताई गई है उसको इम्प्रूव करिए। ये प्रोसेस आपको स्टार्टअप्स को या एंटरप्रेन्योर्स को कई बार करना पड़ता है, और उसके बाद जाके जब पॉजिटिव फीडबैक आता है, उसमें कोई कमियां नहीं पता चलती हैं, तब वो मार्केट फिट इज नाउ मेड, स्टार्टअप या एंटरप्रेन्योर को वो प्रोडक्ट मार्केट फिट मिल गया। Okay, that's all from my side. Thank you. Hello. Yes, Priyanka ma'am. Yes, thank you मैम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आपने एक बहुत ही अच्छा और बहुत इंफॉर्मेटिव लेक्चर दिया। हमको लगता है ये हमारे बच्चों के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव था। मार्केट में किसी प्रोडक्ट को कैसे ले आना है, उसमें अपने आइडियाज हम जब तक नहीं डालेंगे तब तक उसकी लाइफ नहीं होगी। जैसे हम तो फिजिक्स के हैं मैम, तो हम लोग पहले क्या होता था कि बहुत बड़े बड़े वॉल्व चलते थे, ट्रायोड वॉल्व। तो क्या है कि वो उसकी वजह से ना बहुत बड़े बड़े रेडियो ट्रांजिस्टर बनते थे। अब छोटी छोटी आईसीज आ गई हैं, उनकी साइज करीब करीब 1000 टाइम्स छोटी हो गई। तो वो प्रोडक्ट्स को अब सभी लोग लेते हैं क्योंकि इसकी साइज बहुत कम हो गई। तो इसी तरह का आपने बहुत अच्छी बातें बताई हमारे बच्चों को, और जो हमको लगता है जो साइंस के विद्यार्थी हैं वो इसको जरूर फॉलो करेंगे, और पढ़ने के बाद कुछ ऐसा इनोवेशन करें। वो हम लोग यही उम्मीद करेंगे कि कोई अच्छा प्रोडक्ट बनाएं, उसको मार्केट में लॉन्च करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे कॉलेज की तरफ से, पूरी आईआईसी के जितने मेंबर्स हैं उनकी तरफ से आपको बहुत बहुत थैंक यू। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू मैम। हेलो रश्मि मैम। हेलो। हाँ मैम। हाँ मैम। हाँ मैम, मैम का सर्टिफिकेट मैंने जो है उसको प्रेजेंट किया था, फिर से कर दूं क्या? हाँ फिर से कर दीजिए मैम, आया नहीं है अभी, वो दिखा नहीं। हाँ, एक मिनट मैम। अब विजिबल है मैम? हाँ विजिबल है। हाँ निवेदिता मैम, हम लोग की तरफ से आपको एक सर्टिफिकेट। हेलो। थैंक यू मैम, विजिबल है सर्टिफिकेट। हाँ यस मैम, मोस्ट वेलकम, थैंक यू वेरी मच। एक चीज हम अपने सारे पार्टिसिपेंट को बता देना चाहते हैं कि हमने एक लिंक डाली है, एक गूगल फॉर्म है, फीडबैक कम सर्टिफिकेट। तो आप सभी लोग उस फीडबैक फॉर्म को फिल कर देंगे तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगी। सो थैंक्स अ लॉट। थैंक यू मैम। Thank you, Rashmi ma'am. Thank you, ma'am.